Well, good afternoon, everyone. Welcome back to Devdeep classes once again with new content of different subjects at your footstep. Now, for those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I'm a faculty of computer science, but I do teach other subjects as well. So I hope that I'm making your lockdown period more interesting by uploading some good contents of the different subjects. Today, my class is dedicated particularly to the class 10 students, and the subject that we'll be dealing with it is social science, and more importantly, we are going to discuss geography today. That is second chapter of your geography. So let's start. So we have in store for you forest and wildlife resources. Okay. Now, it is one of the important chapters as per the CBSE weightage, that is of 5 to 8 marks. Now, my dear students, from this particular chapter you will be getting a wide variety of questions, as you already know, be it your MCQ, be it your very short answer question, be it your short answer question or long answer question. You will be getting all the different range of questions expected from this topic. Okay. Now, moving on to the main topics of this chapter, which are very important, I have enlisted below. Please take a note of this. You will be getting the most important questions from flora, fauna, followed by afforestation and deforestation, that is under the topic of vanishing forest, different types of species of forest, and impacts of humans on the forest. So I hope you take note or take a screenshot of this frame. Okay, moving on. Now, while we do the introduction of forest and wildlife, we see there are different types of in our planet. There are different types of microorganisms, and these microorganisms range from the different two dimensions of microorganisms that we can see, that is plants and animals. Now, as per the Latin name, we call plants as flora and the animals as fauna. Okay, and the different types of the variety of the plants and animals, that is the flora and fauna, shows the you can say the different biodiversity or the diversity of the biological life. Okay, so biodiversity refers to the diversity of flora and fauna. Okay, now what is biodiversity? As I told you, biodiversity basically the diversity of flora and fauna. Now, flora means the different species of and plants, whereas fauna means the different species of एनिमल्स. तो फ्लोरा का मतलब क्या हुआ? करीबन तरह का पौधे को हम बोलते हैं फ्लोरा, और जानवर के विभिन्न प्रजाति जो है वो फौना के अंदर आ जाएगा. ओके, तो दैट इज व्हाट फ्लोरा एंड फौना मीन. एंड ये एक बात आपको याद रखना है कि बोथ फ्लोरा एंड फौना आर इंडिजिनस, यानी कि दोनों यूनिक है. ठीक है, अगर चीता का मान ले, चीता का भी बहुत सारा वैरायटीज है. ठीक है, एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता, तो स्पीसीज वाइज, नस्ल वाइज हमेशा अलग होगा. ठीक है, तो यूनिकनेस के अगर आप गौर करें तो आपके लिए अच्छा होगा. जब मैंने जैसे कहा कि फ्लोरा रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ. ठीक है, एंड इट ऑल्सो मीन्स द फ्लोरा इन लैटिन लैंग्वेज मीन्स द गॉडेस ऑफ फ्लावर. तो फ्लोरा का मतलब है गॉडेस ऑफ फ्लावर. नाउ these flowers are grouped according to the different categories. What are the different categories? एक आपका region wise classification होगा, एक आपका period wise, मतलब time period of flowering के अनुसार, environment किस environment में उग रहा है वो पौधा, and climatic condition. तो ये सारा parameters हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, और fauna का अगर हम बात करें तो fauna is basically the different forms of animal life. Okay, जूलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट ने हमेशा फौना का नाम इस तरह लिया है कि एक कलेक्शन को दिखाने के लिए, द डिफरेंट कलेक्शन ऑफ एनिमल्स. ओके, अंडरस्टूड. सो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड हाउ दे हैव थ्राइव्ड अंडर अ पर्टिकुलर एरिया और अ जूलॉजिकल निक, इसे ही हम बोलते हैं फौना. ना एक कंसर्न दोनों फ्लोरा और फौना के लिए है, दैट इज डिफोरेस्टेशन, दैट इज वैनिशिंग फॉरेस्ट. डिफोरेस्टेशन मींस रैपिड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. ओके, फॉर डिफरेंट यूजेजेस. क्योंकि ओवर पॉपुलेशन आ रहा है तो फॉरेस्ट एरियाज को भी अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट या फिर हाउसिंग या अर्बन एरिया में रूपांतरण किया जा रहा है. ठीक है, बट इन अ वे ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है कि आवर लंग्स इज लॉस्ट. ठीक है, द लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट are the lungs of the earth.
तो इफ वी आर लूजिंग फॉरेस्ट दैट मीन्स वी आर लूजिंग द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रैपिड स्केल में अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, रैपिड स्केल में हमें प्लांट्स को प्लांट करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का आपका ऑपोजिट हो गया एफोरेस्टेशन, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज। कौन, यहां पे आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि है नॉर्मल स्पीसीज एक कैटेगरी हो गया आपका, एंडेंजर स्पीसीज एक कैटेगरी हो गया, वल्नरेबल स्पीसीज एक कैटेगरी हो गया, रेयर स्पीसीज एक कैटेगरी है, एंडेमिक स्पीसीज एक कैटेगरी है। तो एक एक करके देखते हैं क्या स्पीसीज है। नॉर्मल स्पीसीज में पॉपुलेशन हमेशा नॉर्मल रहेगा, जैसे कि मान लीजिए बैल, बकरी, ये सब कैटल, रोडेंट, सब ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड यानी कि एक्सटिंक्ट होने का कगार पे है, दोज आर कॉल्ड वल्नरेबल स्पीसीज। सो दो स्पीसीज दैट आर ऑलमोस्ट नियरिंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन, उससे हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। जैसे कि हमारे एशियाटिक एलिफेंट यानी कि एशिया के जितने भी हाथी है, नीले नीले रंग का जो बकरा होता है, गैंजेटिक डॉल्फिन जिसे हम सुसुंग भी कहते हैं, तो ये सब आपका वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाता है। एंडेंजर स्पीसीज जो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के कगार पे है, जैसे ब्लैक बंक और इंडियन वाइल्ड एट, जिनका हाल ही में बहुत साल तक पोचिंग भी हुआ है। पोचिंग का मतलब क्या है आपको थोड़े देर बाद में हम समझाएंगे। ये एंडेंजर स्पीसीज यानी जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, दैट इज व्हाट एंडेंजर स्पीसीज इज। नाउ रेयर स्पीसीज, दो स्पीसीज दैट आर क्वाइट स्मॉल इन नंबर, जिनका बहुत ही कम संख्या में मौजूद है, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर जो सिक्किम में मिलता है, हॉर्नबिल आपको अंडमान निकोबार में मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज स्पीसीज आर वेरी स्मॉल इन नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, रेयर स्पीसीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जो स्पीसीज एक रीजन में मौजूद है उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एक बात आपको गौर करना है कि दिस स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय अ नेचुरल बैरियर, यानी कि नेचुरल पाथ ऑफ ऑब्स्टेकल उनके अंदर है। यानी कि मान लीजिए अंडमान निकोबार इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो नेचुरल बैरियर जहां पे भी रहेगा एंडेमिक स्पीसीज थ्राइव होने का चांसेस है। एक आपको और एक एग्जांपल हम देते हैं विच इज आउट ऑफ इंडिया, दैट इज गैलापागोस आइलैंड, जो डार्विन का फेमस थियरी है, फिंच थियरी में भी है कि ये फिंच का अलग अलग स्पीसीज में मौजूद होते थे, ये डार्विन के फिंच, ठीक है। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। तो यहां पे मैंने संक्षेप में दिया हुआ है कि बहुत सारे इधर जानवर है जो डिफरेंट स्पीसीज में बिलोंग करते हैं, तो आप इसे कृपया नोट कीजिए। नाउ ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज हैव अ ड्रास्टिकल इम्पैक्ट। हम बाद में देखेंगे ब्रिटिश जब इंडिया में आए, दे डिड रैपिड स्केल डिफोरेस्टेशन फॉर बिल्डिंग देयर रोड्स, फॉर बिल्डिंग रेलवेज। रेलवे का जो स्लीपर है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है इसके बारे में कि there were requirement of building ships, there were requirement of building what to say the railway sleepers, तो बहुत सारा डिफोरेस्टेशन हुआ था। मोर इम्पोर्टेंटली जो मेन डिफोरेस्टेशन ट्राइबल लैंड से हुआ है वो है झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइबल लोग जितने भी होते हैं कि उन्होंने एक फॉरेस्ट का इलाका जला दिया, वो जलाने के बाद उसी जला हुआ मिट्टी को एक मैन्योर के तरह यूज करके वो कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन they will not cultivate the forest produce like साल, एबनी, रोजवुड, ये सब नहीं, राइस, व्हीट वगैरह ये सब प्लांटेशन। तो नेचुरल ऑक्सीजन कवर तो चला गया ना, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक मेजर ड्रॉबैक है अबाउट द प्लांटेशन प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंट फॉरेस्ट, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज अफेक्टेड द नेचर इन दिस पर्टिकुलर वेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइबल जितने भी औरत है हमेशा बैम्बू सैपलिंग से हो या कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते रहते हैं। दैट इज हाउ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर पास्ट कपल ऑफ इयर्स। अब और एक्सटेंसिवली जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपैंडिंग रेलवेज, फिर माइनिंग एक्टिविटीज, सम लाइक ट्राइबल पीपल ऑल्सो यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज वुड, बार्क्स, मेडिसिनल लीव्स, ठीक है। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, डैम्स बनाने के दौरान बहुत सारा फॉरेस्ट कटा हुआ था। एक रिसेंट रेजिस्टेंस जो हुआ था कि
आपके उत्तराखंड में एक डैम बनने वाला था चिपको इलाके में, लेकिन चिपको मूवमेंट, चिपको जो इलाका था, मतलब गढ़वाल जो रीजन था, तो उधर चिपको मूवमेंट शुरू हुआ जहां पे फार्मर्स या किसान लोग या ट्राइबल लोग ऐसे फॉरेस्ट के पेड़ को जकड़ के रेजिस्टेंस दिए सरकार की तरफ कि नहीं, इसको नहीं काटने देंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस व्हाई डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट आर ऑकरिंग इन इंडिया। तो इसको कैसे रोका जा सके? ठीक है, एक ऑलरेडी देखिए मैंने स्पेसिफिकली हिमालयन यूक के बारे में बताया है। ये एक मेडिसिनल प्लांट जो हिमाचल और अरुणाचल में मिलता है। इससे केमिकल कंपाउंड आता है जिसका नाम है टैक्सोल। दिस टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स और ट्विग्स। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बट ये टोटली अंडर थ्रेट है, क्योंकि जब कल्टीवेशन होता है, डॉर्बल जो कल्टीवेशन हो रहा है, तब इसको रैंडमली कट किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है, तो उसका नंबर भी रिड्यूस हो रहा है। हाल ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेडिसिनल प्लांट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये इस दुनिया में जो हम कैंसर में जूझ रहे हैं, तो ये एक तो वरदान की तरफ है। तो बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन होने का और एक कारण है हंटिंग। हंटिंग तो कॉलोनियल पीरियड से ही हो रहा था, देयर वाज रैपिड हंटिंग। मोर इंपॉर्टेंट इधर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पोचिंग, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल, लाइक एनिमल स्किन। पुराने जमाने में राजाओं के जो होते हैं, वो जो भी जानवर शिकार करते हैं, उनका एक एम्बलम या सॉवरन बना के रखते थे, चाहे वो उसका मुंह का ही हो या एंटायर बॉडी पार्ट का या फिर खाल का ही हो जाए। ठीक है, और एक कारण है कि अनइक्वल एक्सेस हो रहा है कंजम्पशन के तौर पे। ठीक है, द कंजम्पशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज ऑलवेज अनइक्वल। तो ये भी कारण है बायोडाइवर्सिटी हैम्पर होने में। तो ये जब राइनोसरस का हॉर्न, ठीक है, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है, तो इसका भी पोचिंग या स्मगलिंग हो रहा है। और ये फॉरेस्ट फायर के अलावा मैंने जो यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, ये एक्चुअली झूम कल्टीवेशन स्लैश फायर बर्निंग का ही है, कि फॉरेस्ट के इलाकों को जला दो, उसके बाद वहां पे नया प्लांटेशन शुरू करो। नो, कल्चरल इशू के लिए भी फॉरेस्ट का बहुत सारा लॉस होता है, दैट इज फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी के तौर पे हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हम ड्रगरी ऑफ वुमेन विल इंक्रीज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ये ड्रगरी मतलब क्या है? कुछ हार्मफुल प्लांट्स भी होता है जिससे ड्रग्स बनाया जा रहा है, तो सीरियस हेल्थ इंप्लीकेशंस भी हो सकता है उससे। फॉरेस्ट में देखिए बहुत तरीके का पेड़ पौधे मिलते हैं, सब तो अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ हार्मफुल ड्रग्स भी हो सकते हैं वहां से, तो उसको अगर हार्मफुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो सभी के लिए खतरनाक साबित होगा ये। तो फॉरेस्ट कंजर्व क्यों करना है हमें, फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ को? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस या जूलॉजिकल नीड का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर फॉरेस्ट रहेगा तभी ब्रीडिंग या फिर स्पीसीज डेवलप करेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे नस्ल को बढ़ाने के लिए। नाउ सरकार के तरफ से क्या मेजर्स लिया गया है? इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड 1972। इसके तौर पे हंटिंग और बहुत सारा पोचिंग एक्टिविटीज को बैन किया गया। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड डिफरेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज, ताकि उनका पोचिंग ना हो पाए। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? इंडियन वाइल्ड एक्ट 1972 के अनुसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड and different projects were launched. Like Project Tiger is one of the important projects launched by government of India, and other projects like rhinoceros के protection के लिए, कश्मीरी stag जो एक famous two horned deer है, उसका protection के लिए बहुत सारा programs launch किया गया platforms. Now in India particularly, forests are managed and distributed by the Forest Department. As per the Indian Forest Service Act, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश की गई। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही था। तो इस एक्ट के अनुसार हम देखें कि फॉरेस्ट, जितना भी फॉरेस्ट है, सब मैनेज किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट,
which was given by Dietrich Brandis. Forests were divided into 3 types. पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पे हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट रिजर्व रहता है. ब्रिटिश टाइम पीरियड में रिजर्व फॉरेस्ट में सिर्फ ब्रिटिश को जाने का अनुमति था, और रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही वैल्यूएबल है आज के जमाने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज रिजर्व फॉरेस्ट में ही रहेगा. अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, जहां पे टोटल प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वहां पे किसी तरीके का डिप्लेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से टिम्बर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है, लेकिन वो ट्राइबल पीपल इजाजत से उनको मिलेगा. और दूसरा, कभी कभार गवर्नमेंट का सब्सिडी भी रहता है जहां पे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाल, देयर इज अ कंपनी विच इज रन बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विच वी कॉल बनज. तो बनज इज अ कंपनी विच इज अंडर द सब्सिडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हनी, फिर आप तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मरिक, ठीक है, बेल फ्रूट्स मार्केट में देते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट फॉर द पब्लिक. तो ऐसे भी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मार्केटिंग कर रहा है, एंड दैट शेयर ऑफ दैट मनी इज गोइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इटसेल्फ. और अनक्लास फॉरेस्ट बेसिकली है जो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर जितने भी ग्रामवासी हैं उनके लिए. फॉरेस्ट तो हर जगह में ही मौजूद इंडिया में, पर्टिकुलरली हायर डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में है, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तरांचल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में है. आप ये मैप आप एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, जहां पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क के आपके नाम याद रखने हैं. जैसे कि जिम कॉर्बेट आपको याद रखना है गिर नेशनल पार्क के बारे में, रणथंबोर नेशनल पार्क. तो ये कुछ नाम हो गए, आपको इसके बारे में आपको याद रखना है. ना कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट का सेफ गार्ड करने के लिए. जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान में जो मौजूद है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार गांव वालों ने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग वगैरह स्टफ्स को रोका है. एंड और भी है वैरोदेव, दफका, सौचुरी, जहां पे सेट ऑफ रेगुलेशंस किया गया है कि आप पोचिंग नहीं कर सकते. अगर पोचिंग करते हुए पकड़ा जाएंगे तो आपको पुलिस के ऊपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा. तो देखिए, विलेजर्स एंड डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी विल प्ले अ डिफरेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट. Now, sometimes this forest produce are of the grade of natural worship. Like हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे मुंडा और संथाल, उड़ीसा, बिहार या बंगाल के इलाका में महू और कदम्ब ट्रीज को बहुत ही सेक्रेट मानते हैं. उनका जितना भी है प्रोड्यूस, जैसे कि हम वो लोग सेक्रेट ग्रोव्स मानते हैं, ये बहुत ही देवीय है. तो इसी प्रकार उनका बिलीफ के अनुसार हम फॉरेस्ट को बचा तो सकते हैं. So that is how these tribal communities and the village communities can play a very important role in the safeguard of the forest. Now, मैंने जैसे कि चिपको मूवमेंट के बारे में आपको कहा था, चिपको मूवमेंट हिमालय के उत्तराखंड में हुआ था, जहां पे एक ग्रुप ने उधर डैम प्रोजेक्ट बनने वाला था. तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये एक नोटेड गारवाल एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने ये नारा दिया कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे, ऐसे जकड़ के रखिए ताकि हम इस पेड़ को बचा सकें. तो दैट बिकेम्स अ सिंबल ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स. ओके, दैट इज लेटर ऑन वी सी दैट बीज बचाओ आंदोलन, ये सब आंदोलन भी आगे ये चिपको मूवमेंट से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ा. तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो इंस्पायर्ड ये जो मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट, बहुत ही सक्सेसफुल था इन रेस्ट्रिक्टिंग the rapid deforestation of trees for different river valley projects in the areas at that particular time. अब इसके अभी तो पूरा गवर्नमेंट ने इतना ही ये किया है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोल के JFM प्रोड्यूस किया है. यहाँ पे ओडिशा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहां पे लोकल कम्युनिटीज मैनेज करेंगे फॉरेस्ट को. अगर कोई किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए तो लोकल कम्युनिटीज ही रिपोर्ट करेंगे टू द कंसर्टेड अथॉरिटीज. तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज, और उनको इस तरह इन्वॉल्व करे तो दे बिकम एक्टिव पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट
and also the different goods that are coming from the forest. Okay, I hope you have understood the entire chapter, because the entire chapter I have explained in detail. If you have any queries, you can reach out to me at the YouTube comment section. For those who are studying online via Zoom app at Devdeep classes, an important information for you: the doubt clearance of this particular chapter will be commencing again today at evening 6 p.m. Okay, I will give you the link of the video to be uploaded on YouTube just now in your WhatsApp group. It will be live, the link will be live, so those of you are associated with my WhatsApp group Devdeep classes online can view the content right now. So thank you all for tuning in today for another interesting content from Devdeep classes. It's needless to say that if you have any doubts, please get back to me via the YouTube comment section. Those who are associated me via WhatsApp, you can get back to me via WhatsApp itself. So I hope you are having a great time, and at the end, as a part and testament of formality, I do have to say that I hope you are liking my videos of different subjects. Don't forget to subscribe my channel Devdeep classes for more interesting videos related to different subjects. I pledge to come up with more interesting videos of different subjects and make your lockdown period really useful for keeping up pace with your affairs of study. Thank you all for tuning in today. Hope you had a great time.